Okay, now ready for your class. Now ready for your class. We will continue our same topic, the structure of the major landforms. We will continue our topic, major landforms, that is in your page number 112. So only last topic is left, and today our syllabus will be completed. Our chapter will be completed, and only 2 chapters are left that we will do within 4-5 days. Okay. So landforms made by river. Just give me 1 second. Landforms made by river. So see, landforms made by river. So this topic you have read in your 5th standard. River are the most important agent of gradation, because in previous day we have studied about the gradation. Gradation means when something modifying their structure. Modifying means with the help of breaking down. So you are in 7th standard and you always start scribbling like primary students. Okay. So gradation means when with the help of or by the forces of nature, anything modifying them by reducing their structure, by reducing their surface. So this is gradation. For example, gradation of hills, gradation of mountains, उनका भी जो structure है वो time to time change होता रहता है with the help of wind, with the help of running water. So the landform made by river, because river is the most important agent of gradation. River से भी क्या होती है gradation? For example, if river comes from the mountain, then river then uh, river also included in the process of gradation, because river के running water से क्या होता है? Breaking down of rocks, and the valley formed by river is narrow and shaped like the letter V. So it is called V-shaped valley. V-shaped valley. So the valley shaped by river is called V-shaped valley with the help of gradation. And when a river erodes vertically through hard rocks, the valley forms. Because river जो है हमेशा रॉक से ही होती हुई आती है. कभी भी प्लेन एरिया में आके रिवर जो है वो इतनी ज्यादा ग्रेडेशन नहीं करती है. But when river comes from the mountains or rocks, it can form valley, and the valley which is very deep and narrow, it is called George. So have you heard about the George in Kishtwar area or Doda area? वहाँ पे आपने देखा है इतनी इतनी माउंटेनियस हिल्स पे जो है चिनाब रिवर होके आती है. तो चिनाब रिवर, उसका नाम तो रिवर है, बट वहाँ पे चिनाब रिवर जो है वो जॉर्ज भी बना रही है. चिनाब रिवर जो है वो वहाँ पे जॉर्ज भी बना रही है. एंड जॉर्ज क्या है? when river comes from the rocks and uh, and also form a valley, deep and narrow valley. So since it is shaped like the letter I, it is called I-shaped valley. तो जॉर्ज जो है वो आई शेप वैली होती है, एंड वी शेप वैली जो है वो it is narrow and shaped like the letter V. So now this is courses of river. You can see river starts from mountains and form a tributary. And when it comes to the plain area, this is the main river. Okay. So when it comes more in a forwarding process, then it becomes a meander. So this is a mouth of the river. It is in the ocean, and in ocean the river can form delta. ओशियन में जाके ही रिवर क्या बनाती है? डेल्टा. तो रिवर का माउथ पहले आता है,
जहाँ पे सारी रिवर्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी लेक्स हैं, वो वहाँ पे जाके क्या करती हैं, कलेक्ट होती हैं. सो ट्रिब्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ अ रिवर, मेन रिवर. जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है, उसका पानी जो है, उसका वाटर जो है, वो कहीं और जाके भी वहाँ पे जाके स्प्रेड हो रहा है. दैट इज अ ट्रिब्यूटरी. रिवर तो हमारे पास मेन एक ही है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिवर मैंने आपको दिखाई है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इफ इट इज अ चिनाब रिवर और तवी रिवर, तो ये माउंटेन से आ रही है, माउंटेन से आके वाटरफॉल भी बना रही है, माउंटेन से आती हुई इसका जो वाटर है कहीं और जाके भी वो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. तो जहाँ जाके स्प्रेड हो रहा है, इट इज नोन एज ट्रिब्यूटरी. ओके. व्हेन इट कम्स टू द व्हेन इट कम्स टू द प्लेन एरिया, फॉर एग्जाम्पल चिनाब रिवर जो है वो डोडा किश्तवाड़ से होती हुई आ रही है, और जब जम्मू में अखनूर एरिया में आके उसको एक रास्ता मिल जाता है, तब वो क्या बन जाती है, मेन रिवर. ओके. एंड फिर आगे आती हुई, फॉर एग्जाम्पल चिनाब रिवर का जो वाटर है वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ मेंढर. और जब ये इसका वाटर जो है ये किसी और रिवर के साथ कलेक्ट हो रहा है, रावी में जाके कलेक्ट हो रहा है, या पंजाब साइड जाके कलेक्ट हो रहा है, मेंढर वहां पे बनने के बाद देन इट कम्स टू द ओशियन. फिर लास्ट में कहाँ जाती है, ये ओशियन में, और वहां जाके इसका रिवर माउथ बनता है, एंड इट ऑल्सो फॉर्म डेल्टा. ओके. So these are the three courses of river: upper course, middle course and lower course. Okay. Upper course के बारे में मैंने आपको बताया. Upper course when the river originate, जब river start होती है. Upper course is when the river originated. Okay. Middle course when the river comes to the plain area, उसको बोलते हैं middle course. And lower course when river assimilated with other rivers, उसको बोलते हैं लोअर कोर्स. और वो क्यों कहाँ होता है, नॉट इन प्लेन एरिया, इट इज इन ओशियनिक एरिया. ओके. तो जस्ट गिव मी 1 second. Just give me 1 second to change my screen so that I'll start the next topic. Next subtopic, that is meanders. So see how the meanders look like. See this one. This is a meandering river. Meandering river you always found in the plain area, not in the mountainous area. When a river enters the plain area, it is written in your page number 113. When a river enters the plain area, it flows slowly, forming broad, sweeping curves or loops called meanders, like तवी ब्रिज. तवी ब्रिज में आपने देखा है कि कहीं कहीं जो है वो वाटर है, मीन्स मेन रिवर तो है, बट ब्रिज वाली साइड पे आपने देखा है कि कहीं कहीं जाके उसका जो वाटर है वो कलेक्ट होता है, एंड स्वीपिंग कर्व्स और लूप्स कॉल्ड मींडर्स. Due to continuous erosion and deposition, the meander becomes wider and ends of the loop become closer. जब continuously उसमें पानी आता रहता है, तो meander wider हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, एंड वो लास्ट में क्लोजर, लूप कम क्लोजर, उसके जो लूप्स होते हैं, जो उसकी एंडिंग पार्ट होता है, वो क्लोज हो जाते हैं. देन इट बिकम्स द मेन रिवर, एंड इवेंचुअली द meander gets separated from the river. जो मैंने आपको बताया कि जो मेन रिवर है, उसका वाटर कहीं ना कहीं जाके स्प्रेड हो रहा है, तो उसका जो है सेपरेट हो जाता है वाटर, फॉर्मिंग द कट ऑफ लेक विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक. तो उसके कट ऑफ बन जाते हैं. मेन रिवर का पानी लेफ्ट साइड चला गया, राइट साइड चला गया, एंड इट बिकम्स अ ऑक्सबो लेक. सो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सबो लेक will be formed. So see, this is a oxbow lake. तो मेन रिवर का पानी देखो कहाँ से होता हुआ आया और कैसे उसने शेप ले ली. तो इट ऑल दीज ऑल आर द शेप्स ऑफ रिवर. ये ऑक्सबो लेक बना, मींडर बना, ओके, जॉर्ज बना, देन आई शेप वैली बनी, यू शेप वैली बनी. तो दीज ऑल आर द शेप्स ऑफ रिवर. ये रिवर जैसी शेप लेती है, उसका वैसे ही नेम चेंज हो जाता है. ओके. so this is Oxbow Lake. Next, just give me 1 second. Yes. So see,
this is not a Oxbow Lake, this is a delta, because after Oxbow Lake formation we have delta. जब उसने मेन रिवर का पानी मेंढर बना, मेंढर से वो ऑक्सबो लेक बना, एंड ऑक्सबो लेक से बनते हुए कहीं ना कहीं जाके वो कलेक्ट हुआ, और उसका जो एंडिंग पार्ट था, रिवर माउथ था, वो तो डेल्टा बनना ही था, बिकॉज सारी रिवर्स जो है वो असिमिलेट कहाँ हो रही हैं, ओशियन में. एंड समटाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक in its bank and flooding the surrounding area. Fine silt called alluvium is deposited on the bank of river, forming a fertile plain. So this is about plain area. तो हमारा जो मेन एग्रीकल्चर है वो प्लेन एरिया में ही क्यों होता है, बिकॉज रिवर जो है वो अपने साथ क्या लेके आती है, एलुविलियम, alluvium soil. Alluvium soil जो है it is very fertile soil for the agriculture, and the raised river banks are called natural leaves. As the river move towards the sea, अब रिवर का काम क्या है, प्लेन एरिया में आने के बाद मींडर बनता है, मींडर बनने के बाद जो रिवर का काम क्या है, मूव टुवर्ड्स द सी, and it becomes very slow and splits into several small channels called distributaries. So again जो रिवर है वो स्मॉल चैनल्स में कन्वर्ट हो गई है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं, कहीं ना कहीं जाके उसने रास्ता बना लिया, और उन स्मॉल चैनल्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. तो गंगा रिवर हैज मेनी डिस्ट्रीब्यूटरी. आप बोलोगे कि गंगा रिवर तो एक ही है. यस इट इज राइट, गंगा रिवर इज वन, बट गंगा रिवर हैज मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स उसका पानी जो है गंगा का वो बहुत जगह, बहुत स्टेट्स में जाके चला गया है, बहुत स्टेट्स में एंटर हो गया है. एंड ऑल द सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रिवर एंड इट्स चैनल आर डिपॉजिटेड एट इट्स माउथ. तो रिवर जितने भी अपने साथ पेबल्स लेके चलती है, स्टोन लेके चलती है, सेडिमेंट्स लेके चलती है, तो सारे के सारे कहाँ डिपॉजिट होते हैं, एट द माउथ. द ट्रायंगुलर shaped region near the mouth of the river with a network of distributaries is called a delta. So this is the picture which you are watching on your share screen. It is a delta. So you can see this is main river. I'm going to highlight this one. This is the main river. Now these are the small channels. ये देखो small channels, कितने सारे channels बने हुए हैं river के. ओके, सो मेन रिवर यहाँ से आ रही है, गंगा रिवर कहीं से जा रही है, उसके स्मॉल स्मॉल चैनल्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं, वो क्या बना रहे हैं, एक डेल्टा. तो ये जो मैंने जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. So distributaries, you can say distributaries as well as the main river form a delta, and it is in a triangular shape near the ocean. Delta बनता ही ocean में है, not in the plain area. And the Ganga Brahmaputra delta is the biggest delta in the world. तो डेल्टा के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, तो गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपस में मिलके डेल्टा बनाते हैं, ये बिगेस्ट डेल्टा है. एक साइड से गंगा रिवर आ रही है, दूसरी साइड से ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरीज आ रही हैं, तो ये जो मिलके मिलके यहाँ पे ये जो डेल्टा बन रहा है, इट इज द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. ओके, एंड इट इज इन द माउथ ऑफ द रिवर. तो नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर. अब इसने रिवर ने तो लैंडफॉर्म बना दिया. लैंडफॉर्म मीन्स रिवर ने आके प्लेन एरिया बनाया, रिवर ने आके डेल्टा बनाया. तो विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर्स, because glacier is also a water body है. It is in a you can say solid shape में होती है. रिवर जो है ये melted shape में है, and glacier जो है it can also form a landform. So how ग्लेशियर जो है मेल्ट होके कैसे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, सी आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ ग्लेशियर. So just give me 1 second. Yes, so this is the main glacier. See, now glaciers are slow moving masses of snow and ice. Because glacier है, melt तो उसने होना ही है. It is not possible कि glacier जो है वो सिर्फ अपनी solid state में ही रहता है. Because glaciers are slow moving masses of snow and ice. They are also known as rivers of ice. So rivers of ice means ये भी एक तरह का river ही है. They are found in the polar snow fields and in the ice capped mountains.
तो ग्लेशियर्स ऑलवेज फॉर्म्ड इन द आइस कैप्ड माउंटेन्स. कभी आपने सुना है प्लेन एरिया में ग्लेशियर्स बनते हैं? इट दे कैन ओनली फॉर्म इन द माउंटेनियस एरिया. Like river, glaciers also break and carry away rock material. तो ग्लेशियर बना कैसे? Listen, inside the glacier there is a rock. ग्लेशियर के अंदर क्या है? रॉक्स है ना. बिकॉज रॉक्स क्या, माउंटेन के ऊपर आइस पड़ी है, माउंटेन के ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो अंदर तो रॉक ही है. अंदर रॉक है और रॉक के ऊपर क्या है? आइस और स्नो, यू कैन से. रॉक के ऊपर स्नो है, तो जिसके ऊपर स्नो पड़ गई हमने उसको नाम दे दिया ग्लेशियर. बट इनसाइड द ग्लेशियर इट इज अ रॉक. तो लाइक रिवर, ग्लेशियर ऑल्सो ब्रेक एंड कैरी अवे रॉक मटेरियल. अगर रिवर मेल्ट होके अपने साथ रॉक को लेके जाती है, पेबल्स, स्टोन्स को लेके जाती है, तो अगर रॉक के ऊपर आई स्नो जो है वो इतना ज्यादा वो हो गया है, जम गया है, तो जब वो मेल्ट होगा, ग्लेशियर जब मेल्ट होगा, तो वो भी अपने साथ रॉक को कहीं ना कहीं ब्रेक तो करेगा ना, बिकॉज उसके अंदर तो रॉक है. एंड द वैली फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर हैज स्टीप साइड एंड फ्लैट बॉटम. सो इट रिसेंबल्स अ लेटर यू. जब वो वैली बनाता है, जब वो मेल्ट होता है, उसका ग्लेशियर स्नो जो है मेल्ट होती है, उसके मेल्ट होने के बाद जो एक वैली बनती है, इट इज शेप्ड इन यू. Such a valley is called U-shaped valley. And glaciers also carve out shallow armchair-shaped basins in the mountains called cirques of corries. So see, it is written here, cirques of, sorry, cirques or corries. So glaciers also carve out shallow armchair shaped basin. इनकी जो शेप है, इनकी शेप को हमने नाम दे दिया हुआ है cirques और corries. When the ice melts, these get filled up with water, forming lakes. So इनके अंदर जो एक स्पेस दी हुई है, just give me 1 second. Yes. So सर्क्यूज मीन्स जब साइडों पे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो फॉर्म हुए हैं, एंड इन बिटवीन जब इनका पानी आके वहां पे कलेक्ट हो रहा है, एसिमुलेट हो रहा है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो लेक्स बनते हैं. बिकॉज सर्क्यूज और कॉरीज जो हैं, ये क्या हो जाते हैं? फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद आइस, एंड आइस जो है वो मेल्ट होती है, एंड इट फॉर्म्स लेक. When a glacier descends a valley, it melts because of the warmer climate. It loads consisting of clay, land, gravel. ये सारे sediments हैं. Clay, sand, gravel, these are sediments. Cannot be carried any longer and eventually drop. These deposits are called moraines. और उन deposits को हम क्या बोलते हैं? Moraines. You just see, ये जो है हमारा circuit. See, this circuit form a lake, and the lake or the melted water, lake and the melted water, see this way, ये यहाँ पे जाके deposit हो रहे हैं, and moraines. These deposit are called moraines. Okay, this is in the process of glacier. So next we have landforms made by wind. Landforms made by wind. So we have this mushroom rock. You can see which type of mushroom rock we have. Yes, mushroom table or pedestal rock formed by wind. Okay, so landforms made by wind means wind action. अगर river जो है वो gradation के process में involve है, breaking down of rocks के process में involve है, glaciers are also involved in the process of gradation, as well as now we have wind also. Wind also involved in the process of gradation. Wind से भी क्या होता है? Breaking down of rock. अगर आप बोलते हो मैम रनिंग वाटर से, कॉन्टिन्यूअस रेन से रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रही हैं, देन ग्लेशियर से भी रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रही हैं. देन विंड जो है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस. विंड से भी क्या होती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक.
how now we are going to study that how wind involved in the process of breaking down of rock means gradation. Wind action is most prominent in desert as there is hardly any vegetation to check the velocity of wind. और ज्यादातर विंड का जो एक्शन होता है, जो उसकी फोर्स होती है, उसका ज्यादातर असर जो है वो कहाँ होता है, डेजर्ट में. बिकॉज प्लेन एरिया में विंड का कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता, बट विंड का इफेक्ट डेजर्ट एरिया में होता है. So mushroom rock it also formed in the desert area, and there is a hardly any vegetation to check the velocity of wind. When strong wind laden with cores and particles strike the surface of a rock massive. तो आपने those who has visited in the desert, जो desert में गए हैं, उनको ये पता होगा कि desert में भी rocks होती हैं, like plateau area. Plateau area का नाम सुना आपने? Plateau area also have rock. Desert area also have rock. So when strong wind blow, the surface of rock mass it gets eroded. अब डेजर्ट एरिया में रिवर का वाटर तो नहीं आएगा ना उनको ब्रेकिंग डाउन करने के लिए. अगर डेजर्ट एरिया में रॉक्स हैं, देन हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन? ओनली विंड, बिकॉज डेजर्ट में तो ग्लेशियर्स भी नहीं बनेंगे, डेजर्ट में तो रिवर भी नहीं फॉर्म होगी. एंड द जस्ट गिव मी वन सेकंड. So wind is responsible for the gradation process in the desert, and the base of the rock is eroded more than the top. तो ये जो मशरूम रॉक आप देख रहे हो, कि जो उसका टॉप या उसका जो फ्रंट है, जो टॉप मोस्ट उसका पोर्शन है, वो एरोड नहीं होता है. उस विंड की वजह से जो उसका मिडल पोर्शन है वो एरोड हो जाता है. एरोड मीन्स ब्रेकिंग डाउन. जो उसका मिडल पोर्शन है वो एरोड होता है, बिकॉज विंड की जो एक वो होती है, यू कैन से स्पीड. विंड की जो स्पीड है या विंड का जो इफेक्ट है वो ऊपर नहीं होता है, नीचे ज्यादा होता है. ओके, सो इसीलिए उसकी जो रॉक की शेप है वो कैसी बन जाती है, मशरूम शेप. यू कैन सी एंड जस्ट रीड, अ रॉक हैविंग ब्रॉड अपर एंड नैरो बेस. ब्रॉड अपर, ऊपर का पोर्शन जो है ब्रॉड है, और जो बेस है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, बेस है, वो नैरो है, मीन्स पतला है. रिसेंबलिंग एंड मशरूम शेप इज कॉल्ड मशरूम रॉक. तो मशरूम की शेप वो बन जाती है, फॉर्म्ड ड्यू टू abrasive work of wind. Abrasive you can say मीन्स वेरी वाइल्ड, मीन्स विंड का इतना भयानक और इतना एब्रेसिव फोर्स की वजह से जो रॉक है उसकी शेप कैसी बन जाती है, मशरूम शेप. इफ यू अंडरस्टूड दिस मशरूम, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट I'll start the next one. मशरूम शेप जो है वो कैसे फॉर्म हुई, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ विंड. ओके, so narrow base such rocks are called mushroom rocks. एंड सैंड ड्यून्स के बारे में तो आपको पता है, डेजर्ट में सैंड ड्यून्स भी होती हैं, जो आंधी तूफान चलता है बहुत ज्यादा, और जो लोग हैं वो इस सैंड ड्यून्स की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं. ओके, सैंड ड्यून्स इतनी ज्यादा वेलोसिटी की होती हैं, इतनी ज्यादा स्पीड की होती हैं कि सैंड की वजह से लोग जो है वो उस अंडरग्राउंड द अर्थ जो है वो क्या हो जाते हैं, पूरे दब जाते हैं. तो सैंड ड्यून्स को मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी. नाउ नेक्स्ट, विंड कैरी द फाइन सैंड पार्टिकल्स फार अवे मच बियॉन्ड द डेजर्ट and deposit them in humid region. This deposit is yellowish gray in color and form a soil called loess. Extensive loess deposit are found in North China. तो विंड जो है वो इंडिया से होती हुई या कहीं से भी किसी भी पार्ट से होती हुई जाती है, तो अपने साथ एक डिपॉजिट बना देती है. विंड के साथ भी कई पार्टिकल्स होते हैं. अगर रिवर अपने साथ पार्टिकल लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, स्टोन्स लेके आते हैं, तो विंड क्या लेके आती होगी, विंड अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स लेके आती है. मतलब विंड जब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब विंड चलती है तो काफी सारे ड्राई लीव्स या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. बट डेजर्ट की विंड जो है उसमें किस तरह के डिपॉजिट होते हैं, उसमें होते हैं येलोइश ग्रे कलर डिपॉजिट, एंड दीज आर नोन एज लोइस.
येलोइश ग्रे कलर के डिपॉजिट्स होते हैं, उसको हम लोइस बोलते हैं। एंड सबसे ज्यादा डिपॉजिट ये फॉर्म कहाँ होते हैं? नॉर्थ चाइना में। ओके, तो नेक्स्ट द लास्ट वन वी हैव लैंडफॉर्म मेड बाय वेव्स। तो विंड ने तो लैंडफॉर्म बना दिया, विंड ने तो रॉक्स की शेप चेंज कर दी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन। अब वेव्स जो हैं ओशियनिक एरिया में, लाइक मुंबई में आपने देखा होगा वेव्स आती हैं, गुजरात एरिया में वेव्स आती हैं, उनको वेव्स, आपने सुनामी का नाम सुना हुआ है। तो ओशियनिक एरिया में या बीचेस पे वेव्स आती रहती हैं। बीचेस पे देखा हुआ वेव्स को आते हुए? बीचेस पे वेव्स आती है ना, ओशियन वाटर की वेव्स आती हैं। अब वेव्स कौन से लैंडफॉर्म बनाती होंगी? तो सी द पिक्चर, सी द पिक्चर ऑफ द, यस, नाउ यू कैन सी कि जो भी बीच पे जाता है या बीचेस पे इस तरह के, आपने मुंबई एरिया में देखी है स्टोन जो है रिवर उस पे ओशियन साइड पे या बीचेस पे इस तरह के स्टोन होते हैं, रॉक्स होती हैं। ऑलवेज आपने देखा होगा बीचेस पे क्या होती है? रॉक्स होती हैं। तो which type of landform they made? Sea waves are the most important agents of erosion that modify coastal landforms. कोस्टल लैंडफॉर्म्स अगर बनने हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सी वेव्स। एंड सी वेव्स भी क्या करती हैं? एरोड करती हैं। एरोड मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन प्लेसेस वेयर द कोस्ट इज रॉकी। कहाँ पे करती हैं? जहाँ पे कोस्टल एरिया क्या है? रॉकी एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया, ओशनिक ओशियन का जो बैंक है, जिसको आप रिवर की साइड को बैंक बोलते हो, और ओशियन के हम साइड को क्या बोलते हैं? कोस्ट। ओके, तो कोस्टल एरिया अगर रॉकी एरिया है विद स्टीप स्लोप एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड बाय द एरोसिव एक्शन ऑफ सी वेव। तो सी वेव से क्या बन जाती है? क्या फॉर्म होता है? वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक, वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक, and this is called a sea cliff. See, I'm going to highlight. See this one, sea cliff. Sea cliff बनाती है, एक वॉल बना देती है, वर्टिकल वॉल। ओके, वॉल कैसे बनती है? बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे और ज्यादा रॉक थी, बट सी वेव्स की वजह से क्या बन गई है? वॉल बनती जा रही है। And gradually the cliff is worn away and recedes inland, leaving behind a flat surface called a wave cut platform. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? क्लिफ जो है वो टूटता जाता है एंड रिसीड्स इन इनलैंड। ये जो क्लिफ है, सी, ये क्लिफ जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरता जाता है, एरोड होता जाता है, एंड लिविंग बिहाइंड अ फ्लैट सरफेस। और इसका सरफेस जो है वो क्या बन जाता है? फ्लैट। इफ आई हैव अ नेक्स्ट पिक्चर आई विल शो यू व्हिच टाइप ऑफ फ्लैट सरफेस दे मेड। just let me see, flat surface. Okay, so here I have no picture of flat surface. Yes, flat surface you can see on your page number 114. Apply it section. You can see apply it section. Page number 114. Apply it section में आपको दिख रहा है coastal area. Apply it सेक्शन लास्ट में। कोस्टल एरिया में देखो वहां पे एक फ्लैट सरफेस बना दिया, और ये बनाया किसने है? सी वेव्स ने। इससे पहले फ्लैट सरफेस नहीं था, एंड ये आहिस्ता आहिस्ता सी वेव्स ने बनाया है। समटाइम्स इफ द रॉक एट द बेस ऑफ अ क्लिफ इज वीक, द एक्शन ऑफ वेव्स स्कूप्स आउट होल्स which becomes enlarged to form caves. And have you seen in some pictures in the Google? ये मैं आपको दोबारा से शेयर कर दूंगी इन व्हाट्सएप कि कैसी केव्स बनती हैं। अब फॉर एग्जांपल सी कोस्ट के साइड पे, जो हमारा ओशन या बीचेस के साइड पे अगर रॉक्स हैं, फ्लैट एरिया नहीं है, सपोज करो वहां पे फ्लैट एरिया नहीं है, लोग नहीं जा सकते हैं, वहां पे सिर्फ रॉक्स हैं, तो वेव्स क्या करती है? अपनी फोर्स के, अपनी इतनी ज्यादा ताकतवर फोर्स से क्या करती है? उसके अंदर केव्स बना, होल बना देती हैं, होल्स बना देती हैं, और उस होल से क्या बन जाती है? केव। ओके, रॉक के अंदर क्या बन जाते हैं? होल्स। रॉक के अंदर क्या बनते हैं? होल्स बनते हैं ड्यू टू सी वेव्स। और वो होल जो है वो बाद में उनको एक शेप ले लेती है, वो एज अ cave, and cave get bigger and only the roof remain forming arcs, and erosion continues, the roof collapse, leaving only the walls which are called stacks. Stakes get further eroded to form stumps,
listen, I'll send you the pictures of these caves formed by sea waves in the WhatsApp group कि कैसे बनते हैं, and the eroded material are deposited by the waves along the coast. And these deposits accumulate and form a beach. It is essentially made up of sand, gravel, and pebbles brought by the wave. तो बीच बाद में बनता है, पहले कोस्टल एरिया पे क्या होती है, वहां पे रॉक्स होती हैं, रॉक्स जो हैं वो सी वेव की वजह से एरोडेड हो जाती हैं, मे बी वो केव्स भी बन सकती हैं, अगर केव नहीं बनेंगी तो उन कंटिन्यूसली एरोजन की वजह से, ब्रेकिंग डाउन की वजह से वहां पे प्लेन एरिया बन जाता है. ओके, so this is the process of landforms made by sea wave. So if you understood this, raise your hand so that tomorrow I'll start the next topic. Okay, thank you. So I'm going to unmute you one by one, not all, collectively. सबको unmute नहीं करूंगी. Everybody will get the chance to ask your questions. I'm going to unmute you. Question answers of this chapter I'll send today only. The structure of the earth. Question answers मैं send कर दूंगी today, and tomorrow we will start. Tomorrow or maybe day after tomorrow we will start our civics topic or maybe history topic, history chapter. Okay, so here I'm going to unmute firstly Samya Gupta. Samya, you are unmuted. Unmute from your side. Unmute from your side. बच्चे अपने फोन से या अपने उससे unmute करो. I have unmuted you. Next I'm going to unmute Harneet Kaur. Harneet, you are unmuted. Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask that what is the meaning of boundless? Here it is written consisting. Ma'am, boundless. Here it is consisting of clay, sand, gravel, and boundless. Just give me 1 second. Ma'am, in page number 113. Give me 1 second. 113. Ma'am, here it is written Ma'am, Moreni. Consisting of clay, sand, gravel, and In which section? Landform made by? glaciers. Okay, wait. Okay, clay, sand, gravel, and boulders. Boulder is also a material comes from the rocks. ये rocky material है सारा. Okay, ma'am. Okay, because rock से ही rocks जो है वही breaking down हो रही हैं, तो सारे material rock से ही निकल रहे हैं, different type of materials. Okay, ma'am. Next, Sirjan, you are unmuted. Unmute from your side. Sirjan is not here, so I am going to unmute Priyanshi Sharma. Priyanshi, you are unmuted. Priyanshi, you are unmuted. Okay. So I am not finding Sirjan here. Priyanshi, you are unmuted. I am not finding Sirjan in the participants. Okay, Agrima.